اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول معروف ومغفرة خیر من صدقہ ومغفرة خیر من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف، نرم گفتگو کرنا، ومغفرۃ خیر، اور دوسرے کو معاف کر دینا، من صدقۃ یتبعها اذی، خیر اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد تکلیف دی جائے، جس کے بعد احسان جتلایا جائے، جس کے بعد دوسرے کی عزت کو مجروح کیا جائے، اس کی انسلٹ کی جائے، اس صدقے سے یہ بہتر ہے۔ صدقہ جو ہے قرآن کریم میں سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیے گا کہ صدقہ کسے کہتے ہیں۔ جو مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، اسے صدقہ کہتے ہیں۔ پھر صدقہ تین قسم کا ہوتا ہے، فرض، واجب اور نفل۔ فرض جیسے زکوٰۃ ہے، واجب جیسے صدقہ عید الفطر ہے، قربانی ہے، اور نفل جیسے عام ہم خیرات، لوگوں کی ہیلپ وغیرہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نفلی صدقہ۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے صدقہ عید الفطر۔ صدقہ فطر افطار سے ہے، اور یہ ہم اس لیے صدقہ فطر اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ روزوں کے اندر جو ہم سے لغزشیں ہوئیں، ہم سے خطائیں ہوئیں، ہم سے گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ معاف فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ غصے میں ہو تو انسان صدقہ کر دے، اللہ کا غصہ انسان پہ ٹھنڈا ہو، اس پر جو اللہ کا غصہ ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور گھر میں مصیبتیں، پریشانیاں جو آتی ہیں، آدمی صدقہ کر دے، اللہ ان مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ تو صدقہ فطر، سب سے پہلا میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی کہ صدقہ فطر کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد صدقہ فطر کس شخص پر واجب ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اپنی ضرورت سے زائد 52.5 تولہ چاندی ہو، یا مارکیٹ ویلیو کے حساب سے موجودہ جو ریٹ ہو، جو چاندی کا ریٹ چل رہا ہو، وہ معلوم کر کے اتنے اس کے پاس پیسے ہوں، مال ہو، صرف پیسے منی ہی نہ ہو بلکہ اور اگر اس کے پاس ذرائع ہوں، سامان وغیرہ پڑا ہو جس کی مالیت تقریباً اتنی بن جاتی ہو۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں ریٹ جو ہے سلور کا ریٹ ہے وہ 1000 تولہ، اب 52.5 یہ بن جاتے ہیں 52,500۔ تو گویا کہ کس شخص کے پاس اگر 52,500 روپیز اس کے پاس موجود ہو تو اس کو صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اسی طرح جو شخص جہاں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، وہ اپنے ملک میں اس کی چاندی کا جو ریٹ ہے وہ معلوم کر کے اپنے حساب سے یہ کم از کم مقدار یہ صدقے کی ادا کرے گا۔
नंबर 2, उसकी अब वो शख्स एक घर का सरबराह है और भी उसके घर में कमाने वाले हैं, आया कि वो खुद अदा अपनी तरफ से करे, अपनी फैमिली की तरफ से, बीवी बच्चों की तरफ से भी खुद अदा करेगा या नहीं? जवाब उसका ये है कि एक होती है हाउस वाइफ, अगर उसकी बेगम जो है वो कोई काम नहीं करती, सिर्फ घर में ही रहती हैं, और वही आदमी जो घर का सरबराह है वो कमाता है या उसके बच्चे कमाते हैं, और वो सारे लाके अपने बाप को देते हैं जो घर का सरबराह है, तो वो बाप जो है बच्चों की तरफ से भी अपनी वाइफ की तरफ से भी सदका फितर अदा करेगा। हाँ, अगर उसकी मिसेज कमाती हैं, वो खुद जॉब करती हैं, जॉब होल्डर हैं, तो फिर वो अपना सदका फितर वो खुद अदा करेंगी। इसी तरह अगर बच्चे हैं, अलग हैं, बच्चे बालिग हैं, कमा रहे हैं और वो अलग रहते हैं, या उनका खर्चा जो है वो अपना खुद करते हैं, तो अपना खुद बिजनेस करते हैं, तो वो बालिग बच्चे हैं, वो अपना सदका फितर खुद अदा करेंगे। लेकिन जैसे हमारे यहाँ आम तौर पे ये होता है कि सब फैमिली इकट्ठी रहती हैं, सब अपने जॉब करते हैं, कमाते हैं, फिर लाके अपने बाप को, अपने वालिद को, अपने बड़े को दे देते हैं, फिर वो घर के अंदर खर्च करते हैं जैसे चाहते हैं, फिर वो खर्च करते हैं। तो अगर इस तरीके से जॉइंट फैमिली होती है तो फिर जो सरबराह होगा वो तमाम की तरफ से सदका फितर अदा करेगा। अब आया कि सदका फितर है कितना, तो सदका फितर जो है तकरीबन 2 किलो गंदम और तकरीबन 3 किलो 3 kg जो है वो खजूर, और इसी तरह जौ, चावल वगैरह ये आप सदका दे सकते हैं। जो शख्स जहां रहता है उसकी जितनी हैसियत है, अपनी हैसियत के मुताबिक वो अल्लाह के रास्ते में देगा। अब उसके बाद एक छोटा बच्चा है, चांद रात को पैदा हुआ है, तो उसका सदका फितर वाजिब है या नहीं? अगर वो बच्चा सुबह सादिक से पहले पैदा हुआ है तो उसके ऊपर सदका फितर वाजिब है, उसका भी अदा करना पड़ेगा। अगर सुबह सादिक के बाद वो पैदा हुआ है तो उसका सदका फितर वाजिब नहीं है। और इसी तरह अगर कोई शख्स सुबह सादिक से पहले मर जाता है, डेथ हो जाती है, चांद रात की बात कर रहा हूँ, सुबह ईद है, तो सुबह सादिक से पहले वो मर जाता है, तो उस पर भी उसके ऊपर सदका फितर नहीं है। और अगर वो सुबह सादिक के बाद मरा तो फिर उसके ऊपर सदका फितर वाजिब है। इसी तरह अब आया कि ये किन लोगों को देना चाहिए सदका फितर? जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं, उनको देना चाहिए। दूसरी वजह जो शुरू में कि सदका फितर हम क्यों अदा करते हैं, उसकी दूसरी रीज़न ये है कि जो लोग गरीब हैं, ताकि वो भी ईद के दिन अपना पेट भर सकें और दूसरे लोगों के साथ खुशियों के अंदर वो भी शामिल हो सकें, इसलिए हम सदका फितर अदा करते हैं। और सदका फितर ये कम अज कम मिकदार है, आदमी जितना ज्यादा देगा अल्लाह के रास्ते में उतना ही ज्यादा फायदा हो। और सदका फितर के अंदर किसी मस्जिद को दे दी जाए तो ये बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि सदका फितर में जो हम जिसको सदका दे रहे हैं, जो उसका मोहताज है, फकीर को मालिक बनाना जरूरी होता है। इसलिए सदका फितर की रकम जो है मस्जिद में लगाना या किसी और अच्छाई के काम में लगाना दुरुस्त नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। एक रफाई काम हो रहा है, चलो सदका फितर का काम, मैं सदका फितर के ये पैसे हैं उसके अंदर लगा देता हूं, ये बिल्कुल जायज नहीं है। जिसको दे रहे हैं उसको मालिक बनाना जरूरी है, उसको दे, उसके हैंड ओवर करें, उसके बाद उसकी मर्जी है, वो चाहे तो खर्च करे चाहे तो ना करे। तो यहां पर एक अच्छा हॉस्पिटल बन रहा है, आपने दे दिया तो आपने मालिक तो नहीं बनाया किसी को, तो मालिक बनाना ये जरूरी होता है सदका फितर के अंदर, ये बात ज़हन में रखिएगा। इस तरह ज़कात के अंदर भी, ज़कात का इंशाअल्लाह बड़ी डिटेल के साथ और बहुत आसान अल्फाज में ज़कात कैसे अदा करनी चाहिए, कितने माल में अदा करनी चाहिए, ये नेक्स्ट इंशाअल्लाह इसी पर मैं लेक्चर दूंगा। सदका फितर अदा करने का वक्त कौन सा बेहतर है?
तो ईद के दिन ईद की नमाज के जाने से पहले सदका फितर अदा करना ये ज्यादा बेहतर है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक आता है कि वो 2 दिन पहले, ईद से 2 दिन पहले सदका फितर अदा किया करते थे। तो बाज लोग रमजान के शुरू में दे देते हैं या रमजान के महीने में दे देते हैं, कहते हैं ये सदका फितर अदा नहीं होता। असल उसकी वजह यह है कि बाज इस मसले के अंदर बाज उलमा जो है वो इख्तिलाफ करते हैं। वो ये करते हैं कि सदका फितर जो है ये ईद उल फितर के लिए है, और बाज कहते हैं कि जब ईद उल फितर के लिए है तो इसलिए उसको पहले दिया जाए ताकि वो ईद की खुशियों में शामिल हो सके। अपने कपड़े वगैरह लेने हैं, सिलवाने हैं, सिलाई करवानी है, तो ईद की खुशियों में शामिल हो जाए। तो बाज कहते हैं नहीं, उसको ईद के दिन या ईद के 1-2 दिन पहले देना चाहिए ताकि वो अपना पेट भरकर खा सके, और हदीस ये है। बहरहाल इसी पर फतवा है कि उसको रमज़ान के आखिरी अशरे में दे दिया जाए तो ये बेहतर है और कबूल भी हो जाएगा। अल्लाह ताला हमारा सदका खैरात कबूल फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।